Good morning, students. Once again, I am here in a YouTube mode to take another important topic of MEd students third semester in the paper of inclusive education. In this paper, I am dealing the unit third. In the third unit, the important topic is teacher preparation for inclusive school. In this topic, we'll see how the teacher will be prepared for an inclusive school. किस प्रकार शिक्षक का निर्माण होगा समावेशी विद्यालय के लिए। तो आप जैसा जानते हैं कि समावेशी शिक्षा हमारे यहाँ अनिवार्य है। सभी प्रकार के बालक, चाहे वो दिव्यांग बालक हो या सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टूडेंट्स हो या आपके सामान्य बच्चे हों, सभी बच्चे का अधिकार है कि वो एक सामान्य विद्यालय में पढ़ाई कर सके। ये आज के समय में अनिवार्य है। तो ये विषय वस्तु भी अनिवार्य हो जाता है कि किस प्रकार एक शिक्षक का निर्माण, चाहे वो प्री सर्विस एजुकेशन के संदर्भ में हो या इन सर्विस एजुकेशन के संदर्भ में हो, आप शिक्षक का निर्माण इस बात को ध्यान में रख के करना है कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए तैयार हों। इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम बताना चाहूं कि रिफ्लेक्शन ऑन अ टीचर एजुकेशन फॉर inclusion. So inclusion requires a large vision and specific competencies for all teachers. Now the teacher needs to know that diversity is present in the classroom. क्या है? तो डाइवर्सिटी। आप देख रहे हैं मैं जो भी चर्चा किया कि एक कक्षा में विविधताएं हैं, सभी प्रकार के बालक बैठे हैं और that they should attain to learn with a range of diverse need, और वो अपनी जो diverse need की पूर्ति के लिए। So for in this frame, it is imperative to prepare teacher for inclusion in all curricular plan. इसलिए हम अपने शिक्षक को उसको ध्यान में रख के तैयार करेंगे, चाहे वो प्री सर्विस टीचर्स हो या इन सर्विस टीचर्स हो। ये जो शिक्षक हैं, इस शिक्षक का निर्माण करने के लिए आप इस बात को ध्यान दें कि एक शिक्षक एक रिसर्चर भी होता है, स्ट्रैटेजिक प्लान भी करता है और रेसिलिएंट भी होता है। शिक्षक एक रिसर्चर है कि ऑलवेज वो क्या करता है, सर्च करते रहता है। फॉर टीचर ऑलवेज सर्च for explanation about their educative reality, that intellectual skill to propose diverse hypotheses, solve problems, generate innovation, and face challenges. The teacher is a researcher and always do all these things. Teachers और क्या करते हैं? Strategic plan करते हैं। Strategist is a professional with a strong self-regulation, skill for planning, guiding and assessing not only their own intellectual resources about the learning of curricular issues, but also in their performance as a teacher. Always has an attitude to learn and improve. Face uncertainty with creativity. And the third is resilient. Resilient means प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण या लचीला. Always move towards the future
in spite of their difficult situation by making healthy adjustment against adversity. क्या बातें हो रही हैं कि टीचर क्या करते हैं? ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर इन स्पाइट ऑफ देयर डिफिकल्ट सिचुएशन. डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो आगे बढ़ते हैं और हेल्दी एडजस्टमेंट करते हैं किसी भी प्रकार की स्थितियां हो, परिस्थितियां हो. सो द नॉलेज, skill and attitude for all inclusive teacher must emphasize that the purpose of all teacher intervention is the students learning. So for implementation process, the teacher are the key to success in inclusion. Here we deal 7 essential components for teacher preparation program are introduced based on the experience of the training teacher are as follows. यहाँ हम लोग 7 मुख्य प्रकार के कंपोनेंट्स की चर्चा करने जा रहे हैं. पहला कंपोनेंट्स है हाई सोशल एंड कम्युनिटी कंटेंट. High social and community content. The inclusive teacher is a professional in education with a strong commitment to his or her community. The teacher preparation program should include subjects with high social and community content because they need to be sensitive to the need of the students and the environment. हमें क्या करना पड़ेगा? टीचर को प्रोफेशनल होना होगा जिसके लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की आवश्यकता है. स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किसके लिए? तो समाज के लिए. शिक्षक को सेंसिटिव भी होना पड़ेगा अपने विद्यार्थियों के प्रति, अपने वातावरण के प्रति. तो शिक्षक का निर्माण करने के समय समावेशी स्कूल के लिए ये ध्यान देना है कि शिक्षक एक कमिटेड हो, हाईली कमिटमेंट हो और सेंसिटिव भी हो. द सेकेंड कंपोनेंट विल डील द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, इक्विटी एंड क्वालिटी. यहां जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द इक्वालिटी, equality means we can know that promoting the same opportunity for all, यानी कि सभी को एक समान समझना, सभी को प्रमोट करना, सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना फॉर ऑल, दैट इज इक्वालिटी. इक्वल मानना. पहले शब्दों की मतलब समझ लीजिए. क्वालिटी मीन्स ऑफरिंग फंक्शनल एंड मीनिंगफुल लर्निंग. क्वालिटी लर्निंग प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, वो क्वालिटी होगी. और इक्विटी क्या है? रेस्पॉन्डिंग टू स्पेशल एजुकेशनल नीड. इक्विटी जो समाज से वंचित लोग हैं उसको अपलिफ्ट करना, स्पेशल एजुकेशनल नीड प्रदान करना, ये आपके इक्विटी हो गए. इस तीनों पार्ट जो है इंपॉर्टेंट एजुकेशनल एस्पेक्ट है दैट एवरी टीचर नीड्स टू बी इंक्लूसिव. अगर टीचर निर्माण कर रहे हैं तो आपको इस तीनों बातों को ध्यान देनी है. और ये जो एसेंशियल आप कह सकते हैं एस्पेक्ट है इन अ टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम, चाहे वो क्वालिटी हो, इक्विटी हो या इक्विटी कॉन्सेप्ट हो, should be translated into a specific action of educational intervention. थर्ड जो कंपोनेंट है द कोलैबोरेटिव वर्क among educators. The collaborative work among educators facilitates inclusion and need to be promoted in the teacher preparation program.
The author believes that inclusion is funded on a collaborative of teacher, यानी कि कोलैबोरेशन, मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है, टीम शेयरिंग होने की आवश्यकता है. A team sharing knowledge, making decision, solving problems together, and generating action in order to improve the school and to increase the learning for all. और अगर एजुकेशन सभी के लिए है तो मुझे किस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना होगा? वो है कोलैबोरेटिव वर्क पे. और ये जो कोलैबोरेटिव वर्क है ये सोर्स ऑफ डायलॉग है, को टीचिंग एंड अपडेटिंग. सो कोलैबोरेटिव वर्क, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर ज़्यादा बल देने की आवश्यकता है. इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है. शिक्षक का निर्माण अगर हो रहा है तो शिक्षक के निर्माण के कड़ी में इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आपको कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को आप ध्यान दें. The fourth important component is interpretive and critical paradigm. All program for pre-service teacher and in-service teacher must be based on interpretive and critical paradigm. Allow encounter with other and the collective and interpretive insight into environment and circumstances, and the development of research activities are fundamental. So the inclusive teacher has strong skill in action research method. So inclusive teacher को क्या होना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग स्किल यानी कौशल का ज्ञान होने की आवश्यकता है. किस तरह का? इन एक्शन फॉर्म में. द डायलॉग एंड कोलैबोरेशन आर एसेंशियल इन द इंक्लूजन. द वैल्यू ऑफ अदर आर कंसिडर्ड. आई एंड यू आर कंबाइंड एज अस. जब डायलॉग करें, जब बातचीत करें तो मैं नहीं, हम लोग की बात करें. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्चुअल प्रिपरेशन. जब शिक्षक का निर्माण करना हो तो कॉन्टेक्चुअल प्रिपरेशन करना होगा. कनेक्टिंग विद द एजुकेशनल सर्विस, अलाउइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिटी as an enriched element has three great aspects outlined below. For teacher to promote inclusive education, the training should link directly with the educational service is called contextual professional practice. क्या करना होगा? The training should be linked directly with the educational service. ट्रेनिंग को हमको लिंक करना होगा एजुकेशनल सर्विस के लिए. इस सो कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल प्रोफेशनल प्रैक्टिस. इसके अंदर में कुछ बातें समझने की आवश्यकता है. कॉन्टेक्चुअल प्रिपरेशन में हमें क्या करना होगा? रीसिग्निफिकेंस ऑफ ओन स्कूल एक्सपीरियंस ऑफ फ्यूचर टीचर. रीसिग्निफिकेंस करना पड़ेगा. सो दिस पीरियड ऑफ टाइम इज एसेंशियल. Each future teacher should discuss his or her own experience as a student. शिक्षक को अपना एक्सपीरियंस विद्यार्थियों के साथ चर्चा करना होगा कि मैंने ये देखा, इस तरह का मेरा अनुभव है. उस अनुभव को शेयर करना होगा, एनालाइज करना होगा इमोशंस एंड टू बी अवेयर ऑफ स्कूल एंड पेडागोजिकल थ्योरी मेड बाय द टीचर. शिक्षक को इस बात का ध्यान देना होगा कि वो अपने अनुभव की चर्चा विद्यार्थियों से करे. अप्रोच टू वेरियस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन. हमें यह भी ध्यान देना होगा कि वेरियस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन के वेरियस अप्रोच को भी देखना पड़ेगा. दिस कंसिस्ट ऑफ visiting previous selected school, taking part in observation activities and educational practice in the following stages. हमें क्या करना पड़ेगा?
Planning activities. After assessing the educational context, it is important to develop instrument of work, observation, guides, questionnaire, interview, that's to make team to provide all aspect for implementing the planned approach. हमें अप्रोच तैयार करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा बच्चों के लिए, हमें क्रिटिकल रूट इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, हमें प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा। ये एस्पेक्ट को, वेरियस अप्रोचेस को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन रियल एनवायरनमेंट। अगर टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो ये स्टूडेंट्स जो है मस्ट रिमेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ए स्कूल अंडर द गार्जियनशिप ऑफ अ टीचर। शिक्षक के अंदर काफी लंबे समय के लिए विद्यार्थी रहते हैं, तो मुझे ऐसे प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो कि रियल हो। This teacher must exert monitoring activities to enrich their teaching experiences with the knowledge of a mentor who attend and promote inclusion activities. तो यहाँ तीन बातों की चर्चाएं की गई कॉन्टेक्चुअल प्रिपरेशन में। रीसिग्निफिकेंस करना होगा, अप्रोचेस को ध्यान देना होगा और कुछ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर शिक्षक का निर्माण कर रहे हैं तो मुझे इस बातों को ध्यान देनी होगी कि कौन कौन से अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज क्रॉस categorical या multi-tiered formation. Diversity need a global and common vision, philosophy value, legal frame, language and shared knowledge as learning theories. Special educational need, support system, educational intervention, strategy for large and small group and individual. ट्यूटरिंग एंड करिकुलर एडजस्टमेंट। मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा कि मल्टी टायर्ड फॉर्मेशन करना पड़ेगा, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा शिक्षक निर्माण हो पाए। अब ये मल्टी लेयर फॉर्मेशन में द कॉमन रेफरेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रेमवर्क दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ऑल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या क्या करना पड़ेगा? कॉमन विजन लाना पड़ेगा। कॉमन विजन अगर होगा तब जाके कार्य हो पाएंगे। और क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेज एंड कॉमन नॉलेज को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे एम्फेसाइज करना होगा स्टूडेंट पॉसिबिलिटी एंड सपोर्ट सिस्टम को विथ ए क्लियर विजन दैट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न। हमें क्या करना पड़ेगा? एजुकेशनल अटेंशन टू डाइवर्सिटी प्रैक्टिसेस। मुझे इंक्लूजन स्ट्रैटेजी फॉर लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप एंड वन-on-one मेंटरिंग, करिकुलर एडजस्टमेंट, अल्टरनेटिव सपोर्ट सिस्टम, डाइवर्सिटी असेसमेंट एक्शन, कोलैबोरेशन विथ अदर प्रोफेशनल एंड को-टीचिंग, ट्रांसडिसिप्लिनरी एक्शन among other. They are the essential for the development of professional skills for attention to the diversity. The next is mentoring. New teacher must participate with experienced teacher at least during the first 2 years. जो नए शिक्षक आ रहे हैं उनको देखने की आवश्यकता है। जो पुराने शिक्षक हैं उनको मेंटर करने की आवश्यकता है। मिनिमम स्टार्टिंग पीरियड में, एटलीस्ट स्टार्टिंग 1 साल 2 साल उनको देखने की आवश्यकता है, जो पुराने शिक्षक को देखेंगे। दिस इंक्लूड्स डायलॉग सेशन, रिव्यू ऑफ सिचुएशन, डिसीजन मेकिंग, अरेंजमेंट एंड वर्क प्लान among others to provide the following to the new teacher. जो न्यू टीचर होगा उसको हमें देखने की आवश्यकता है।
ठीक है, द न्यू टीचर नीड काउंसलिंग एंड मेंटरिंग एक्शन टू कंसोलिडेट हिज और हर स्किल एज एन इंक्लूसिव टीचर, whereas educational dynamic is intensive and complex. It is necessary that new teacher participates under the accompaniment and mentoring of experienced teacher to enable consolidation of an inclusive vision in those teacher. जो पुराने शिक्षक हैं वो नए शिक्षक का आप क्रियाकलाप को ऑब्जर्व करेंगे और उनको समय समय पर मेंटर करेंगे। सो मेंटरिंग में आप देखें, है ना, कि इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे उसको कार्य करने की भावना बढ़ती जाएगी, उसमें कोऑपरेशन की भावना बढ़ेगी, उसमें वो कोऑपरेट करेंगे, जो शिक्षक हैं वो बताएंगे कि क्या क्या आपको नई बातें सीखे। और इस सभी अगर कंपोनेंट की बात समझ पा रहे होंगे तो क्या निष्कर्ष निकल रही है कि शिक्षक निर्माण के समय आप द फोकस ऑफ ऑल द एक्शन इज टू डेवलप एन अप्रोच टू इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर। हमें इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर डेवलप करना है। तो उस क्या बातें निकल के आई? पहला, वर्क टुगेदर विद द इंस्टीट्यूशन to build a collaborative network connecting colleagues and diverse professionals, interchanging knowledge and making new friends. पहली बात है, ये कंक्लूजन के फॉर्म में निकल के आ रही है कि वर्क टुगेदर विद द अदर इंस्टीट्यूशन। सेकेंड, प्रमोट एजुकेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट टू डेवलप इनोवेशन। हमें प्रमोट करना होगा एजुकेशनल रिसर्च को जिससे कि ये फायदा हो। पार्टिसिपेट इन डाइवर्स सोशल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम इन ईच कम्युनिटी। पार्टिसिपेट करना है इन एजुकेशनल डाइवर्स सोशल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम में। सपोर्ट द कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ ऑल टीचर बिकॉज इट इज द बेस्ट वे टू अटेंड टू द डाइवर्सिटी ऑफ आवर स्कूल। क्या कर सपोर्ट करना है? कोलैबोरेटिव वर्क को। चूज द बेस्ट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर द टीचर एजुकेशन। हमें बेस्ट स्टूडेंट प्रोफाइल को भी चूज करना है। इनरिच द टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम विथ ट्रांसवर्सल कॉम्पिटेंसी अलोंग द करिकुलर प्लान। हमें टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम में ट्रांसवर्सल कॉम्पिटेंसीज को भी देखना है। और क्या बातें निकल के आ रही है? इंक्रीज ऑल प्रोफेशनल स्किल्स इन टर्म ऑफ अल्टरनेटिव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम सच एज ब्रेल, साइन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बोर्ड्स थ्रू ए सप्लीमेंट्री प्रोग्राम। सभी शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों को किस प्रकार हैंडल करें, उसके लिए अलग अलग प्रकार के जो ब्रायल हैं, अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साइन लैंग्वेज है, सभी चीज का ज्ञान देना होगा। तभी समावेशी शिक्षा में शिक्षक वैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सो फाइनली वी कैन से दैट इंक्लूजन हैज बीन incorporated into almost every educational system, but we still need to learn and understand the real meaning of education for all. हमारे पेन एंड पेपर पे तो एजुकेशन फॉर हो गया, लेकिन सचमुच क्या एजुकेशन फॉर ऑल रियलिटी में हुआ है? क्या सभी के लिए जो शिक्षा है उसमें सभी का मतलब सभी कोई इंक्लूड हुए हैं? अगर सभी इंक्लूड नहीं हुए हैं तो उनको इंक्लूड कैसे करना होगा, देखना पड़ेगा। वो भी with quality and equity and recognize the fundamental role of a teacher in advancement of social justice, human right and opportunity for welfare. Each one of us need to face the challenges in order to consolidate inclusion for the benefit of our community. ये हमारे समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार ये है, सभी का ये कर्तव्य बनता है कि किस प्रकार एजुकेशन फॉर ऑल
का नारा पूरा हो, किस प्रकार हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन सक्षम हो, पूरा हो, इसके लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा। समाज के रहने वाले प्रबुद्ध लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा कि किस प्रकार हमारा ये इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेस हो। नो डाउट आज के डेट में शिक्षक निर्माण हो रहे हैं और ये सिखाया भी जा रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षक किस प्रकार वैसे बच्चों को हैंडल करेंगे इस जिससे कि सारे दिव्यांग बच्चों को दिक्कत ना हो। सभी प्रकार के रैम्प बनाए जा रहे हैं, लिफ्ट लगाए जा रहे हैं ताकि फिजिकल हैंडीकैप बच्चों को दिक्कत ना हो। साइन लैंग्वेज पढ़ा जा रहा है, ब्राइल सिखाया जा रहा है। फिर भी ये कहना असत्य नहीं होगा कि हम लोग अभी रियलिटी से फार दूर हैं। वी आर काफी दूर हैं। वी आर स्टिल फार अवे। हाउ टू fill this gap? We all, the teacher, has to think again and again. So this is all about how to prepare teacher preparation for inclusive school. Thank you everybody for listening me patiently. You go through whole lecture once again if you have not understood. If you have understood, if you have any query, you can ask me on my WhatsApp number. Thank you everybody once again.